laws of motion. So this time we will start with gravitation. So can you see my screen? Okay, that's good. So let's start with, like last time we covered about laws of motion. If you have any questions, you can ask here. Yeah. So we will start with gravitation. So we know that we remember that when we release the certain object at certain height, these objects falls vertically downwards, right? So what is the reason behind that? So reason is nothing but gravitation. So gravitation force, how that gravitation force is come into the research, and what happened, like how it was discovered. So we'll see in this chapter. So introduction. All material objects have a natural tendency to get attracted towards earth, right? So कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, so उसको एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. In any natural phenomena like coconut falling from trees, right? Or we might have seen the apples or any fruits, जो भी पेड़ में होते हैं, तो वो अगर राइपन हो जाते हैं या पक जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, और वो ऊपर की तरफ नहीं जाते, वो जमीन की तरफ जाते हैं, राइट, टुवर्ड्स अर्थ. और रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो भी अर्थ की तरफ ही आते हैं. सो द सेम टेंडेंसी इज ऑब्जर्व. सो हम देखेंगे कि ये सेम टेंडेंसी हम हर जगह ऑब्जर्व करते हैं. ऑल बॉडीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो कोई भी बॉडी हो तो अर्थ की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव होती है. दैट्स गुड क्वेश्चन. इज इट टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट और फोर्स ऑफ अर्थ, राइट? सो ऑब्जेक्ट्स तो खुद से मूव नहीं होते. सो देयर मे बी सम फोर्स is there is some force which is acting on that body, right? So that's why it's that object has tendency to go towards earth, right? So this is not tendency of objects to go towards earth, but there is force or gravitational acceleration, gravitational force which is acting on that object. That's why it is falling on the earth. Uh, so this is tendency. So same tendency, right? So same phenomena we observe that whenever there is a body, it will fall towards earth. So why that's happening? All bodies are attracted towards earth with constant acceleration. This fact was recognized by Italian physicist Galileo. So ये जो फेनोमिना है, बहुत साल पहले एक इटालियन फिजिसिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने ऑब्जर्व किया था और उनसे रिकॉग्नाइज किया था इन्होंने. He is said to have demonstrated by releasing two balls of different masses from top of Leaning Tower of Pisa, which reached the ground at the same time. So उन्होंने कहा, मतलब I know it's bit controversial, but we can say that कि उन्होंने दो डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट्स थे, उन्होंने एक बड़ी हाइट वाली एक बिल्डिंग थी, वहां से उन्होंने छोड़ दिए और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दे रीच एट द सेम टाइम, राइट? सो रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम. सो ये उन्होंने ओपन एयर में किया था. एक्चुअली वी हैव सीन इन द earlier lecture, like laws of motions, I described you that there is some force acting due to air also, right? Air resistance, वो हम consider नहीं करेंगे, then this phenomena works really well. Like both the objects, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स जो भी मास कम और ज्यादा हो तो वो सेम टाइम पे रीच करेंगे, प्रोवाइडेड देर इज नो एयर रेजिस्टेंस. ओके, प्रॉपरली वो वैक्यूम होना चाहिए. उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया ये कि दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट्स भी अगर हम वहां से
बड़ी बिल्डिंग से छोड़ देंगे, देन ऑल्सो इट विल रीच एट द सेम टाइम. ओके, बट उन्होंने ऑब्जर्व किया था, इट वाज लाइक वेरी वेरी लॉन्ग बैक. So another very good phenomena is like another good knowledge or another good piece of information is Indian astronomer and mathematician Aryabhatta, 475 to 550 AD. It's like it's before the Christ, right? So and this is after. So around studied the motion of the moon, Earth, and other planets in the 5th century, right? So उन्होंने देखिए उन्होंने मतलब आर्यभट्ट जो थे उन्होंने मोशन ऑफ मून, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स थे, उन्होंने 5th सेंचुरी में ही ये सब डिस्कवर कर लिया था. और इन हिज बुक आर्यभटिया ही कंक्लूडेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अबाउट ऑन एक्सिस. तो उन्होंने इतना ही नहीं बताया कि अर्थ जो है वो उनका खुद का एक एक्सिस है, उसके बहुत उसके अराउंड रिवॉल्व करती है. अर्थ रिवॉल्व्स अबाउट इट्स ऑन एक्सिस एंड इट्स मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन. तो सन के अराउंड भी वो मूव करती है इन सर्कुलर ऑर्बिट. ये उन्होंने लिखा था. सोचिए कि दिस इज इन 5th सेंचुरी, राइट नाउ वी आर इन द 20th सेंचुरी. सो अराउंड 1500 साल पहले आज से उन्होंने ये कह दिया था कि अर्थ मूव्स अर्थ revolves around self axis plus its revolve around the sun also. Also the moon revolves in a circular orbit around the earth. उन्होंने कहा कि मून जो है वो भी अर्थ के अराउंड घूमता है. ओके, सो उन्होंने ये दो फिनोमिना बताए थे. ऑलमोस्ट 1000 years आफ्टर आर्यभट्टा. ओके, तो आर्यभट्टा के 1000 years के बाद, मतलब सोचिए कि इंडिया में ये चीज कितने एडवांस थी तभी. इट्स लाइक 5th सेंचुरी. मतलब जब यूरोपियंस कंट्रीज में जब टैचो ब्राहे एंड जॉन्स केपलर स्टडीड द प्लेनेटरी मोशन, तो सोचिए देखिए ये इनमें 1000 years का डिफरेंस है अराउंड. सो उन्होंने 1000 years के बाद इनको पता चला कि उन्होंने स्टडी किया कि प्लेनेटरी मोशन थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन. तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और बताया कि ये यस कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन टू. सो वहाँ उस टाइम पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुए थे यूरोपियन कंट्रीज में, बिकॉज इट वाज मतलब उन्होंने तभी ऐसा हुआ था कि सब लोग जानते थे कि सन अर्थ के अराउंड घूमता है. बिकॉज अगर हम देखेंगे तो सन घूम रहा है, हम उधर ही है ऐसा हमें लगता है. तो ये बहुत साल तक मान्यता थी कि अर्थ ही सन अर्थ के अराउंड घूमता है. बट जब इन लोगों ने स्टडी किया और इन्होंने बताया कि ये गलत है, तो उसमें से कुछ साइंटिस्ट को उन्होंने तभी मतलब जेल में वगैरह रखा था, क्योंकि उन्होंने जो कॉमन चीजें थी उनके खिलाफ आवाज उठाई थी. ओके, सो इस प्रकार से तभी हुआ था, बड़े बड़े साइंटिस्ट को जेल में रखा गया था. आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट इज द नेम ऑफ दोज ग्रेट साइंटिस्ट, बट यू कैन गूगल थ्रू इट. सो उसमें से अभी केपलर जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस प्रकार से अर्थ मूव्स अराउंड द सन. Kepler analyzed the huge data meticulously recorded by Tycho Brahe and established 3 laws of planetary motion. So उन्होंने क्या किया, टाइचो ब्राहे जो थे उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया था उसके ऊपर उन्होंने 3 लॉज बनाए. He showed that the motion of planets follows this law. तो उन्होंने शो किया कि जो प्लैनेट्स है इसी लॉ को फॉलो करते हैं, राइट. सो he showed that the motion of planets follow this law. The reason why planets obey these laws are provided by Newton. तो ये क्यों लॉ करते हैं, मतलब ये फॉलो क्यों करते हैं, उसके पीछे का उन्होंने लॉ बता दिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है इस डेटा के अनुसार. बट उसके पीछे का रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग, वो सब रीजन बताया उन्होंने न्यूटन ने.
Okay, he explained the gravitation is the phenomena responsible for keeping the planets in their orbits around the sun. So इन्होंने एक नया फिनोमिना निकाला, ग्रेविटेशन, राइट. सो वो फेमस कथा हमें पता है कि एप्पल फ्रूट से गिरा तो न्यूटन ने देखा, देन ही केम टू नो दैट देयर इज सम फोर्स and he discovered that there is gravity, right? So that's why this name comes as a gravity. He explained the gravitation is phenomena responsible for keeping the planet. So उन्होंने बताया कि जो planets उनके ऑर्बिट में घूमते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो gravitation. Okay, the moon also revolves around the earth due to gravitation. So moon जो earth के around revolve करता है, that is also due to gravitation. So gravitation compels dispersed matter to coils, hence the existence of the earth. The moon also revolves. Okay, gravitation compels dispersed matter to the coalesce, hence the existence of the earth. तो gravitation क्या करता है, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल है या मैटर है उनको एक साथ जोड़ के रखता है. कोएलेस, ओके, कोएलेस मतलब एक साथ जोड़ के रखना. डिस्पर्स मतलब अलग अलग. कॉम्पेल्स, कॉम्पेल्स मतलब एक साथ लेके आना, फोर्सफुली. The sun and all the material macroscopic objects in the universe. Okay, hence the existence of the earth. मतलब इसीलिए जो ग्रेविटी है उसी के कारण क्या है, अर्थ, सन और ऑल जो मटेरियल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हमें भी दिखते हैं, जो भी स्टार्स है, व्हाई दे आर देयर, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन. अभी ये तो ग्रेविटेशन है. अगर आपसे आप में से कोई साइंटिस्ट हो जाए और बताए कि नहीं ग्रेविटेशन नहीं है, इसके पीछे और एक राज है, and if you come up with some different theory, that will be also, and if you can prove that theory, then you will get the Nobel Award, right? So generally अगर आपको पता होगा नोबेल अवार्ड जो है, सो आप में से किसी ने नोबेल अवार्ड के बारे में पता किया है, मतलब पता है आपको? आप प्लीज टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में. आपने कभी नोबेल अवार्ड के बारे में जाना है, व्हाट इज नोबेल अवार्ड और क्या होता है? आप में से किसी को जानकारी है? नहीं है तो ठीक है, मैं बता दूंगा. ओके, सो नोबेल अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड, मतलब अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड का कहलाया जाता है. हर साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, इन सब्जेक्ट्स में जो डिस्कवरी हो गई रहती है, राइट? तो उनको अगर वो प्रूव की जाए, डिस्कवरी जो भी है, अगर आप बोल देंगे कि हाँ ग्रेविटेशन है, लेकिन सच्ची में ग्रेविटेशन है क्या, अगर ये आप प्रूव कर देंगे, राइट? मैंने एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी में आपने बता दिया ग्रेविटी है. जैसे अभी न्यूटन्स और इन्होंने बताया कि ग्रेविटी है, ये सच्ची में है ग्रेविटी. अगर आप प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली, एक्सपेरिमेंट से, तो आपको वो नोबेल अवार्ड मिल सकता है. नोबेल अवार्ड इज हाईएस्ट अवार्ड इन द साइंटिफिक फील्ड, और ये अराउंड 1900 से दिया जाता है, मतलब आज से 120 साल पहले से. तो आप जानते होंगे ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन, उनको भी ये अवार्ड मिला है, नोबेल अवार्ड. तो बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको ये नोबेल अवार्ड मिला है. सो आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, अभी आप 11 फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, या आप पता कर सकते हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं. जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का उन्होंने एक सिद्धांत दिया था अराउंड 1905, उन्होंने पेपर लिखा था, लेकिन वो प्रूव नहीं हुआ था, राइट? तो वो प्रूव हुआ अराउंड, और 15-20 साल के बाद उनको प्रूव हुआ, तो उसके बाद उनको नोबेल अवार्ड दिया गया. ओके, तो इस प्रकार से आप थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरी के बाद वो प्रूव भी होनी चाहिए, देन यू विल गेट द नोबेल अवार्ड. सो इसी प्रकार से, और ये कब चालू हुआ नोबेल अवार्ड? 1900 के बाद, राइट? और उनका रूल है कि इस अवार्ड को कोई भी जो साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवरी की है, अगर एट द टाइम ऑफ अवार्ड, अगर वो लोग सोच रहे, वो कमेटी है वो सोच रही कि इनको अवार्ड देना है, तो उसके पहले उस साइंटिस्ट को लिविंग, मतलब वो क्या है, इस दुनिया में हयात होने चाहिए, वो
डेड नहीं होने चाहिए, राइट? दैट इज द मेन कंसर्न। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो न्यूटन्स के जितने भी ग्रेट डिस्कवरीज है उनको भी नोबेल अवार्ड देना चाहिए था, बट वो बिकॉज इट इज स्टार्टेड इन 1900, मतलब आज से 120 साल पहले, और न्यूटन जी जो थे, न्यूटन साइंटिस्ट, वो तो 250-300 साल पहले थे, राइट? तो इसीलिए उनको नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से मैं आपको जस्ट अराउंड बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है, सो दैट वन डे इफ यू गेट अ चांस यू कैन बी अ साइंटिस्ट एंड आप भी कुछ डिस्कवरी कर सकते हैं। तो देखिए, चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आप में से कितने लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी है? इंटरस्टेलर देखी है? सूरज, समीर, एनीवन? ओके। सो आई एम नॉट श्योर अगर वो हिंदी में अवेलेबल है कि नहीं आपके पास। अगर किधर भी आपको चांस मिलता है, आपके पेरेंट्स को पूछ लीजिए whether you can see the interstellar movie in हिंदी, राइट? इंग्लिश में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उनके टर्म्स वगैरह समझने के लिए, लेकिन हिंदी में या इंग्लिश में आप जैसे भी हो देख लीजिए। उसमें ये ग्रेविटेशन का कंसेप्ट बहुत एडवांस लेवल पे बताया गया है। It's not in only small thing, but it is in advanced stage how this gravitation uh, plays role in different things. Okay, so बहुत सारे फिनोमिनाज हैं। अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अदरवाइज इट्स ओके। ओके, आपके फिजिक्स के लेक्चर के लिए या फिजिक्स पढ़ने के लिए या फिजिक्स एग्जाम पास होने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। जस्ट इफ यू गेट अ चांस यू कैन सी दैट। ओके, then every massive objects in the universe experiences gravitational force। जो भी ऑब्जेक्ट्स है इस यूनिवर्स में, it experiences gravitational force। it is the force of mutual attraction between any two objects। so ये क्या है कि दो किसी भी ऑब्जेक्ट्स में का एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ देयर मास। सो कोई भी दो चीजें इनका मास है तो उनमें एक अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, सो जो दो मास है उनके बीच में जो हमेशा ये अट्रैक्टिव ही फोर्स होता है, ये डिस्ट्रैक्टिव कभी नहीं होता। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम। ये उनके बीच में का जो मीडियम है उसके ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता। इट इज मच वीकर फोर्स देन अदर फंडामेंटल फोर्सेस। मतलब जो भी बाकी के जो फंडामेंटल फोर्सेस है उनसे ये बहुत ही कम होता है, सो बहुत ही वीक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अराउंड 10⁻³ टाइम्स वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो देखिए, इसका प्रमाण जो है बहुत ही कम है। जो भी न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं उनसे 10⁻³ टाइम्स इतना वो, मतलब बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल होता है। बट इट इंक्रीजेस एज मास इंक्रीजेस, राइट? सो अर्थ का मास देखिए कितना है, मतलब अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा है, राइट? केजी में अगर देखा जाए, सो उसके अनुसार उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है या कम होता है। सॉरी। सो अभी देखते हैं केपलर्स लॉ। जो केपलर्स साइंटिस्ट थे उन्होंने जो जो लॉज बनाए देखते हैं। So Kepler's laws of planetary motion describe the orbits of planets around the sun। So ये जो laws है वो planetary motion है orbits की, right? तो जो sun के around जो planets घूमते हैं, orbits हैं, उनको ये define करता है। He published first two laws in 1609 and the third law in 1619। राइट, देखिए उन्होंने पहले दो लॉ 1609 में पब्लिश किए और उसके बाद और एक लॉ पब्लिश करने में उन्हें 10 साल लग गए to prove that this works, right? So these laws are the result of analysis of data collected by Tycho Brahe through years of observation of the planetary motion। So जो सॉरी टाइचो ब्राहे थे साइंटिस्ट, तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था प्लैनेटरी मोशंस का, उनका जो डेटा था, तो उस डेटा के ऊपर उन्होंने ये लॉज बनाए हैं। ओके, सो लेट्स सी, डू यू नो ड्राइंग द एलिप्स? सो एलिप्स जैसे सर्कल एक डायग्राम है या स्क्वायर, रेक्टेंगल, वैसे ही एलिप्स एक प्रकार की आकृति है। सो देखते हैं कि कैसे उसे बनाया जाता है। एन एलिप्स इज अ लोकस ऑफ
points in a plane such that the sum of their distance from the two fixed points called foci is a constant. So इनमें क्या है कि the sum of their distance from the two fixed points, so दो fixed points है यहाँ A और B, वहां से distance हमेशा constant रहेगा. So आपको अगर ये ड्रॉ, और यहाँ हम इसे सर्कल में जैसे सेंटर होता है, राइट, वैसे यहाँ सेंटर से देखिए, सेंटर से हर डिस्टेंस सेम होता है सर्कल में, राइट. सेंटर से सर्कल पे अगर कोई भी आप डिस्टेंस लेंगे, ये या ये कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो ये सेम होगा, राइट, दैट इज रेडियस, वी नो दैट. सो सिमिलरली यहाँ ये जो दो पॉइंट्स है, इंस्टेड ऑफ वन, नाउ फ्रॉम द टू पॉइंट्स ऑल द डिस्टेंस आर सेम. सो इसे ड्रॉ कैसे करते हैं? इंसर्ट टू टैक्स और ड्रॉइंग पिंस. अभी ड्रॉइंग पिंस यहाँ रख दीजिए ऑन शीट ऑफ पेपर, डिस्टेंस डी अपार्ट, राइट. और इन्हें सेंटर नहीं, इन्हें फॉसी कहते हैं यहाँ. ओके, सो टाई द टू एंड्स ऑफ पीस ऑफ थ्रेड. एक थ्रेड ले लीजिए इस प्रकार से, ओके, whose length is greater than 2d. so उतना ध्यान रखिए कि उसका लेंथ 2d से, मतलब d हम इनके बीच में का डिस्टेंस है तो 2d से ज्यादा होना चाहिए, 2 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए. ओके, प्लेस लूप अराउंड द ए बी. जैसे अभी ये थ्रेड से हमने सर्कल में लिया था, मतलब एक क्लोज लूप में हमने एक धागा लिया है, राइट. और उसमें पेन लगा के अगर हम ये ड्रॉ करेंगे, जो फिगर बनेगी उसे क्या कहते हैं? एलिप्स. ओके, पेंसिल लेके अगर हम लोग इसे बना देंगे तो ये बन जाएगी एलिप्स. तो इस प्रकार से एलिप्स बनती है. अनदर थिंग इज एलिप्स इज, अगर आपने ये कोन देखे होंगे, राइट, इस प्रकार के कोन होते हैं, या आपका आइसक्रीम का कोन भी होता है, राइट. तो अगर इसको आप, मतलब अगर पैरेलल, मतलब इसको पैरेलल जो भी सरफेस है, इसको पैरेलल काटेंगे तो सर्कल दिखेगा आपको, ऊपर से जो भी बनेगा वो सर्कल होगा. लेकिन आपको, आप उसे थोड़ा सा एंगल से काट दीजिए इसको, और जो फिगर दिखेगी ऊपर से वो एक एलिप्स होती है. ओके, लेकिन इसको ऐसे नहीं काटना है बेस तक, राइट, इसको ऊपर ही, बेस के पहले ही काटना है, तो आपको एलिप्स बन जाएगा. तो आपके जो आइसक्रीम के कोन होते हैं उन्हें भी अगर आप स्लाइस करके देखेंगे इस प्रकार से तो आपको इलिप्स दिखेगा. ओके, सो लॉ ऑफ ऑर्बिट. All planets move in elliptical orbit around the sun with the sun at the one of the foci of the ellipse. So उनका पहला लॉ क्या था? एक लॉ कि लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑल प्लैनेट्स मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट. सो जो भी प्लैनेट्स है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द फॉसी ऑफ द एलिप्स. तो सन एक इसमें से किसी एक जगह पे होगा, यहाँ या यहाँ, ओके, और ये इस प्रकार से मूव करते हैं. तो सन एस जो आपको दिखाया गया है यहाँ फिगर में, तो ये इसमें से एक जगह पे सन होगा, और ये अर्थ या कोई भी प्लैनेट है, अर्थ, मार्स, वीनस, तो वो मूव करेंगे, राइट. द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज शोन इन द फिगर 5.1. ओके, ऑर्बिट दिखाया गया है कि प्लैनेट के अराउंड कैसे होता है. हियर एस एंड एस डैश, एस और एस डैश जो है वो फॉसी है ऑफ द एलिप्स ऑफ द सन बीइंग एट द एस. तो इसमें से एक जगह पे सन होगा. P is the closest point along the orbit from the S and is called perihelion. Perihelion. Okay. So P is the closest point along the orbit from the S and is called perihelion. मतलब ये जो पॉइंट है वो अगर देखेंगे इस S से तो सबसे नजदीक है, तो इसे क्या कहते हैं? पेरीहेलियन. And A is the farthest from the S and is called aphelion. Aphelion. So क्या होता है यहाँ देखिए, अगर हम अगर हम मान ले कि हमारा सन यहाँ है और अर्थ यहाँ से मूव हो रही है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट. सो दिस इज कॉल्ड पेरीहेलियन. एंड ए, जब अर्थ मूव हो रही है तो यहाँ से ये सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस हो गया, मतलब बहुत दूर हो गया, तो उसे एपहेलियन कहते हैं. और अर्थ कहाँ है? अर्थ इस ऑर्बिट में मूव हो रही है. ओके,
अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं, राइट। सो अगर इस फिगर में देखेंगे, पी ए इज द मेजर एक्सिस टू ए, एंड उनका डिस्टेंस है, उनके बीच में का डिस्टेंस है वो मेजर एक्सिस कहते हैं, और एम एन जो है, एम से एन, ये माइनर एक्सिस होता है। ओके, हम टू बी या ए क्यों ले रहे हैं? सो ये जो मेन सेंटर पॉइंट है, वहां से ये जो डिस्टेंस है वो ए माना जाता है, इसके लिए मेजर एक्सिस टू ए हो गया, और ये जो है वो बी है, इसलिए पूरा एम एन हो गया टू बी। ओके, सो पी ओ एन ए ओ आर द सेमी मेजर एक्सिस। सो ये जो है, जो हम डिफाइन किए अभी, वो सेमी मेजर एक्सिस है, और ये सेमी माइनर एक्सिस है। ओके, सो मेजर एक्सिस मतलब बड़ा, या जो भी लेंथ में ज्यादा हो उसे मेजर एक्सिस कहेंगे, और जो छोटा है उसे माइनर एक्सिस कहेंगे। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट लॉज ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, अभी लॉ ऑफ एरियाज देखते हैं। द लाइन दैट जॉइंस अ प्लैनेट एंड द सन, द लाइन दैट जॉइंस अ प्लैनेट एंड द सन sweeps equal area in equal intervals of time। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, आप देखिए। तो द लाइन दैट जॉइंट्स, मतलब अगर ये जो लाइन है, प्लैनेट, अगर ये हम एज्यूम करेंगे कि एलिप्टिकली मूव हो रहे हैं एक प्लैनेट, सो ये सन से लेके जो प्लैनेट का जो लाइन है, द लाइन दैट जॉइंट्स अ प्लैनेट, ये एस और पी, राइट, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटर्स ऑफ टाइम। सो वो जब भी यहाँ से यहाँ मूव हो रही है लाइन, मतलब जो प्लैनेट जो यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, मतलब ये जो लाइन है, वो लाइन जो एरिया ये डिफाइन करती है, जैसे ये शेडेड एरिया है, राइट। सो इस लाइन ने सपोज डेल्टा टी, मतलब 1 मिनट या 1 सेकंड में जितना एरिया कवर करेगी यहाँ, same area, when that planet comes here, at same area, okay, not distance, area वो same होगा, that is the law of areas। okay, so ये नहीं कह सकते कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में का वो सेम होगा, नहीं, तो उनका एरिया जो है, राइट। सो केपलर ऑब्जर्व दैट प्लैनेट्स डू नॉट मूव अराउंड द सन विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सन के बाजू में है वो सेम स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, मतलब वो दोनों सेम स्पीड से मूव नहीं हो रहे हैं यहाँ। जो प्लैनेट है, यहाँ का स्पीड और यहाँ का स्पीड सेम नहीं है। दे मूव फास्टर व्हेन दे आर नियरर द सन। जब भी यहाँ होते हैं तो वो फास्ट होते हैं, ओके, एंड दे स्लोअर व्हेन दे आर फादर। जब यहाँ होते हैं तो बहुत दूर होते हैं। दिस इज एक्सप्लेन बाय दिस लॉ, इसीलिए इस लॉ से ये डिफाइन किया है। फिगर 5.2 शो, मतलब हमने देखा इस फिगर में कैसे वो एरिया है। द शेडेड एरियाज आर द एरिया स्वेप्ट बाय एसपी, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, राइट। ये जो लाइन जॉइनिंग बिटवीन द सन एंड प्लैनेट, ये जो लाइन से जो एरिया है, राइट, इस लाइन से जो एरिया बना है वो दोनों एरिया सेम है। द लॉज द लॉज ऑफ एरियाज, अभी हम थोड़ा सा लॉज ऑफ एरियाज को जो उन्होंने बताया तो वो बराबर है, या उन्होंने बताया वो राइट ही है, हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं। तो वो कैसे मैथमेटिकली हमको प्रूव करना है कि हाँ एरिया सेम है करके, तो उन्होंने कैसे प्रूव किया देखते हैं। द लॉज ऑफ एरियाज कैन बी अंडरस्टूड एज एन आउटकम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो कि हमने लिनियर मोमेंटम पढ़ा था, लिनियर मोमेंटम इज व्हाट मास इनटू वेलोसिटी, राइट। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम भी होता है, जो इन टर्म्स ऑफ एंगल, अगर कोई भी बॉडी एंगुलर शेप में मूव हो रही है, जैसे हमने देखा कि यहाँ इट्स मूविंग इन एंगुलर शेप, राइट, इट्स नॉट गोइंग स्ट्रेट दिस प्लैनेट, सो तब हम एंगुलर मोमेंटम यूज करते हैं। देखेंगे हम एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है। इट इज वैलिड फॉर एनी सेंट्रल फोर्स,
जब ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है तो वो सेंट्रल फोर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, मतलब देयर इज सम सेंटर एंड इट्स मूविंग अराउंड दैट सेंटर, राइट. A central force as an object, a central force on an object is a force which is always directed along the line joining the position of object and a fixed point usually taken as the origin of the coordinate system. So central force क्या होता है? So हमेशा जब बॉडी मूव हो रही है, यहाँ अभी देखिए प्लैनेट मूव हो रहा है, राइट, एंड इट इज मूविंग अराउंड, हम एक कांस्टेंट पॉइंट पकड़ सकते हैं जो सन के अराउंड, राइट. तो ये ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, राइट. सो यही कहा है, सेंट्रल फोर्स इज एन ऑब्जेक्ट on an object is a force which always directed along the line. So ये इस लाइन में ही हमेशा सेंट्रल फोर्स एक्ट होता है. ओके, तो हम सेंट्रल फोर्स अभी यहाँ कंसिडर करेंगे. The force of gravity due to sun on the planet is always along the line joining sun and planet. तो इन sun और planet का जो भी फोर्स है वो हमेशा इस लाइन पे एक्ट होगा. ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज आप पूछ सकते हैं. The force of gravity due to sun on a planet is always along the line of joining sun and planet. हम फिगर 5.2 में देखा. It is thus a central force. ये central force भी है, right? जो हमने अभी पढ़ा central force क्या होता है. Suppose the sun is at the origin. यहाँ हम sun एक origin पे मान रहे हैं. The position of the planet is denoted by R. तो S और P इनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो हम R से डिफाइन करेंगे. And the perpendicular component of its momentum is denoted by P. Okay, so जो इससे मूव हो रही है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन होगा R. मतलब अगर यहाँ है तो ये ऐसे है, अगर यहाँ हो जाएगा तो यहाँ मोमेंटम होगा, ये यहाँ मोमेंटम. सो ऐसे ये मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होते रहेगा. दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दैट, राइट. सो अभी देखेंगे कि एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट ऑफ मास m इज गिवन बाय इंटरवल डेल्टा टी. अभी ये डेल्टा टी मतलब टाइम t में एरिया कितना, ये एरिया कितना उन्होंने स्वेप्ट किया मतलब उस प्लैनेट ने. तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? 1/2 इंटू आर इंटू वी डेल्टा टी, राइट. अभी v मतलब क्या है? स्पीड, और जो भी प्लैनेट का स्पीड है मूव होने का. डेल्टा टी क्या है? टाइम. डेल्टा टी मतलब उस टाइम इंटरवल में ये मूव हुआ. एज फॉर स्मॉल डेल्टा टी v बार इज परपेंडिकुलर टू r बार एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज. तो हम एक छोटा सा, बहुत ही छोटा डिस्टेंस मानते हैं. तो क्या होता है कि बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए हम ये दोनों इस प्रकार से मान सकते हैं, राइट. ये और ये जो डिस्टेंस है तो वो v इंटू डेल्टा टी है, राइट. और ये बन गया r. सो हम ये ट्रायंगल बन गया, राइट. अगर सिंपल बहुत ही छोटा पोर्शन ले लीजिए यहाँ का, सो वी कैन कंसिडर दैट एज अ स्ट्रेट लाइन हियर, नॉट अ कर्व, राइट. हेंस हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ? ये ट्रायंगुलर शेप में है. तो वही हमने फॉर्मूला यूज किया है. दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट. सो वही है, हमने अभी एरिया डिफाइन किया. सो एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, राइट. टोटल एरिया इन दैट टाइम इज नथिंग बट हाफ इंटू आर इंटू वी. अभी लिनियर मोमेंटम p इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अभी लिनियर मोमेंटम अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो क्या है? मास इंटू वेलोसिटी. पुटिंग v इज इक्वल टू p बाय m, राइट. अगर हम लोग p बाय m इस v में अगर हम लोग उसे पुट कर देते हैं तो द इक्वेशन बिकम्स डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. मतलब क्या है? उस टाइम में कितना एरिया उसने कवर किया, हाफ इंटू आर इंटू पी बाय एम. ओके, अभी एंगुलर मोमेंटम देखते हैं. एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट एल इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट. और वो कैसे डिफाइन करते हैं? आर इंटू पी. आर मतलब डिस्टेंस इंटू जो भी लीनियर मोमेंटम है.
तो फॉर सेंट्रल फोर्स द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, राइट? फॉर सेंट्रल फोर्स, जो सेंट्रल फोर्स के लिए है, वो एंगुलर मोमेंटम नीड टू बी कंजर्व। सो क्या है यहाँ देखिए, डेल्टा ए, तो आर पी है, आर इंटू पी, राइट? ये देखिए आर इंटू पी, और ये यहाँ भी आर इंटू पी है, तो वो दोनों इक्विवेलेंट है। सो व्हाट, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज नथिंग बट एल बाय टू एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट? ये उन्होंने लॉ के अनुसार बताया है, राइट? So this proves that laws of area, this is the consequences of gravitational force being a central force. Okay, so ये क्यों होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन सन एंड एनी प्लैनेट, तो उसके कारण जो डेल्टा ए है, मतलब जो एरिया इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर टाइम, इन टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये यहाँ से प्रूव किया गया है। ओके, एनी क्वेश्चंस? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए, मतलब बहुत ही सिंपल थ्योरी उन्होंने रखी थी, जैसे कि जो एरिया है हर प्लैनेट का, प्लैनेट जब रिवॉल्व होता है, तो जो एरिया स्वेप्ट बाय दैट प्लैनेट, राइट, तो अराउंड दैट सन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट। तो ये यहाँ हो या यहाँ हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम में डेल्टा टी, जो जो भी एरिया जो कवर करते हैं, तो वो हमेशा सिमिलर होगा। Okay, and we'll go to the third law. Third law of periods. The square of the time period of the revolution of planet around the sun is proportional to the cube of semi-major axis of the ellipse traced by planet. अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस है, लेकिन हम उसे पार्ट पार्ट में देखेंगे। The square of time period of revolution of planet. Okay, square of टाइम पीरियड, मतलब उसको कितना टाइम लगता है, रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन उसे घूमने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है, तो उसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, राइट, ऑफ द एलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट। जो एलिप्स बना है उसका जो सेमी मेजर एक्सिस हम जो हमने देखा अभी, तो उसके क्यूब से ये प्रोपोर्शनल होता है। तो लेट्स सी, इफ आर इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो हम ऐसा मानेंगे कि जो एलिप्स बना है प्लैनेट का अराउंड द सन, तो उसका सेमी मेजर एक्सिस है, वो हम आर एज्यूम कर लेंगे, और टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट? टी स्क्वायर इज टाइम पीरियड, is always constant. T square by r cube is something constant, right? So Kepler's laws were based on regular observation of the motion of the planets. Kepler did not know why the planets obey these laws. That's he had not derived these laws, right? So उन्होंने ये laws derive नहीं किए, उन्होंने सिर्फ बताया कि ऐसा होता है, right? लेकिन क्यों होता है ये नहीं बताया था। ये कुछ टेबल हैं, देखते हैं हर एक प्लैनेट्स के, तो मर्क्यूरी, वेनस, विनस, अर्थ। तो देखिए, अगर इनका सेमी मेजर एक्सिस देखा जाए और उनके पीरियड, पीरियड इज इन ईयर्स, राइट, 0.25, 0.615, सो दिस इज द पीरियड विच रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन 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 राउंड अराउंड द सन। ओके, सो देखिए, को अर्थ के इक्विवेलेंट माना गया है, मतलब अर्थ के 1 ईयर से इसको कंपेयर किया गया। अर्थ को अगर 1 ईयर लगते हैं, तो मर्क्यूरी कंप्लीट्स इन 0.24। ये देखिए, प्लूटो को 248 ईयर्स लग जाते हैं उसे एक राउंड कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन। अगर यहाँ, अगर इनका जो उन्होंने केपलर्स इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था कि टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय उनका सेमी मेजर एक्सिस का ये डिस्टेंस का क्यूब, राइट, तो अगर उसको ये हम कांस्टेंट डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो क्या है, 2.953, 2.96, तो दिस कम्स एज अराउंड same number like 2.9823, right? So it proves that okay, this works. Okay, so any questions? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। What would be the average duration of the year if the distance between the sun and the earth becomes thrice the present distance, twice the present distance? उन्होंने पूछा है कि अगर सन और अर्थ में के जो डिस्टेंस है अभी, वो 3 टाइम्स बढ़ जाता है या 2 टाइम्स बढ़ जाते हैं,
जो अभी का डिस्टेंस है, तो क्या होता है? तो लेट r1 प्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। अभी r1 हम पहले एक डिफाइन करते हैं, r1 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करते हैं। सो अभी टाइम पीरियड कितना है? 365 डेज, वी नो, राइट? सो इफ r2, मतलब अगर पहले r1 था, अभी जो r1 है वो अगर 3 टाइम्स हो जाता है, राइट? सो केप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स हम यूज करेंगे यहाँ। So we know t2 square by t1 square divided by is equal to r2 cube by r1 cube. r2 और r1 का हमें पता है 3r1 होता है। So पीरियड जो है 1897 डेज से बढ़ जाएगा, राइट? अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ जाता है, जैसे t2 by t1, so root of 27, it becomes root of 27, then into 365, so 1897 डेज से ये हमारा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर हम R2 जो है 2R, मतलब अगर डबल डिस्टेंस कर देंगे तो क्या होता है? सिमिलर फॉर्मूला हम यूज करेंगे, t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर r2 क्यूब बाय r1 क्यूब। ये फॉर्मूला कहाँ से आया हमें पता है, राइट? बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट, राइट? t2 स्क्वायर बाय r क्यूब। सो अगर देखा जाए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r1 क्यूब is equal to t2 cube by सॉरी r2 क्यूब, ये स्क्वायर होना चाहिए, टाइम पीरियड का हमेशा स्क्वायर होता है, राइट? तो अगर हम इसे क्रॉस एक्सचेंज कर देंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट? सो अभी डबल डिस्टेंस कर देंगे, देन इट विल बिकम रूट ऑफ 8, राइट? 3 टाइम्स कर देंगे तो रूट ऑफ 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ रूट ऑफ 8 से तो 1032 डेज, राइट? ओके, सो इस प्रकार से 1032 डेज से बढ़ जाएगा। मतलब 365 डेज थे, तो हमें एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, जो अभी हम लोग 365 डेज या हम लोग 1 ईयर पकड़ते हैं, तो उसे 1032 डेज लग जाएंगे अगर अर्थ जितने भी डिस्टेंस है उससे डबल डिस्टेंस पे चली जाती है। ओके, एनी क्वेश्चंस? अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। तो आगे है यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये हम पढ़ेंगे। सो हम इसे क्या करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तब तक आप प्लीज टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।